ax plus b is equal to 0. This is the general format to write linear equation in one variable. Linear equation in one variable. देखो ax plus b is equal to 0. यहां पे x is the only variable. X is the only variable. A is what? A is the coefficient of x. Only variable का coefficient A है और B क्या है? Constant. B क्या है? Constant. यहां पे इक्वालिटी का साइन है is equal to 0. It indicates that it is a statement of equality. It is a statement of equality. It means that x का एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ax plus b will be equal to 0. स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी मतलब क्या होता है? x का एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ax plus b is equal to 0. यहां पे जो वेरिएबल है x, इसका पावर क्या है? 1. मतलब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का डिग्री कितना है? डिग्री ऑफ इक्वेशन 1. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री. ओके, तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है इसका पावर 1 है, तो देयरफॉर ये इक्वेशन का डिग्री 1 है. डिग्री 1 है मतलब ये लीनियर. वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट है. इक्वेशन मतलब इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. एक्स का एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, वेरिएबल का एक पर्टिकुलर वैल्यू पर दिस इक्वेशन विल बिकम 0. ओके, देयरफॉर it is linear equation in one variable, right? These are the examples of linear equation in one variable. देखो पहला इक्वेशन 2x plus 5 is equal to 0. यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल x है, इसका डिग्री 1 है, पावर 1 है, इक्वेशन का डिग्री 1 है, therefore it is a linear equation in one variable. y upon 5 plus 7 is equal to 0. It is a linear equation in one variable. एक ही वेरिएबल y है, इसका पावर 1 है. 7m minus pi is equal to 0. m only one variable, इसका डिग्री 1 है. pi x minus root 2 is equal to 0. It is a linear equation in one variable. Only one variable x present है, पावर इसका 1 है. 5x plus 2 is equal to 9 minus x. Only one variable x present है, तो x का पावर 1 है. Therefore, these are the examples of linear equation in one variable. Linear equation in one variable can be written in the form of x plus b is equal to 0. cx plus d is equal to 0, m plus n is equal to 0, m plus b is equal to 0. ऐसे linear equation in one variable लिखा जा सकता है. This is the general format to write linear equation in one variable. Linear equation in two variables. An equation which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and x and y are variables is called linear equation in two variable. Linear equation in two variable का definition क्या है? An equation which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers, x and y are variables is known as linear equation in two variables. Example देखो, 3 is equal to 2x minus 7y. इसका मतलब इसको कैसे ax plus by plus c फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो, root 2x minus 7y minus 3 is equal to 0. Root 2x plus minus 7y plus minus 3 is equal to 0. ax by plus c is equal to 0. यहाँ पे a क्या है? root 2, b क्या है? minus 7, c क्या है? minus 3. जिस इक्वेशन को हम ax plus by plus c फॉर्म में लिख सकते हैं, that equation is known as linear equation in two variable. Okay, these are the examples of linear equation in two variable. 12s plus 3t is equal to 7. 12s plus 3t minus 7 is equal to 0. तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना? 12s plus 3t plus minus 7 is equal to 0. जिस इक्वेशन को हम ax plus by plus c फॉर्म में लिख सकते हैं, that equation is known as linear equation in two variable. तो देखो ये ax by plus c फॉर्म में आ गया.
वेरिएबल के जगह पर कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई एम एन एस टी कुछ भी लिखा जा सकता है। ये अभी आ गया ए एक्स बी वाई प्लस सी फॉर्म में। यहाँ पे दो वेरिएबल एस एंड टी है, एस का पावर 1 टी का पावर 1, एस का कोएफिशिएंट 12 टी का कोएफिशिएंट 3, कांस्टेंट -7। देयरफॉर इट कैन बी रिटेन एज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में, देयरफॉर इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकंड देखो, पाई यू माइनस 5b इज इक्वल टू √2। यहाँ पे दो वेरिएबल है, यू भी, यू का पावर 1 बी का पावर 1, ओके। तो दिस इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थर्ड वन देखो, p प्लस 4q इज इक्वल टू -5। p एक वेरिएबल, q अनदर वेरिएबल, दोनों का पावर क्या है 1 1, देयरफॉर इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इक्वेशन √2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखेंगे, √2x प्लस माइनस 3y प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमारा ax प्लस by प्लस सी फॉर्म में आ गया। देखो a क्या है √2, b क्या है -3, c क्या है -7, ओके। देयरफॉर इट इज ए लीनियर इक्वेशन। दो वेरिएबल है, पावर 1 है, ओके, वेरिएबल का पावर 1 1 है, देयरफॉर इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकंड वन, 2x इज इक्वल टू y प्लस 5। इसको अगर हम लिखेंगे सिस्टमेटिकल, 2x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, आ गया x dy प्लस सी फॉर्म में। तो 2x प्लस -1 इंटू वाई प्लस -5। देखो -1 मैंने कहां से लाया, माइनस है ना, y के पास कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -1 कॉमन ले लिया, तो ax प्लस by प्लस सी फॉर्म में आ गया। हमारा a क्या है 2, b क्या है -1, c क्या है -5। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल x y है, x का पावर 1 y का पावर 1, ओके। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक क्वेश्चन देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट a b c इन ईच केस। पहला क्वेश्चन हमारा है 2x प्लस 5p इज इक्वल टू 0। हमें किसी फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे ना, 2x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट पार्ट में था, लेफ्ट को आ गया, माइनस हो गया। हमें बट प्लस चाहिए, तो ट्वाइस x प्लस 5y प्लस -8 इज इक्वल टू 0 हो गया, ax प्लस by प्लस c। a यहाँ पे कितना है 2, b कितना है 5, c कितना है -8। इस केस में a b c को इंडिकेट करना है। सेकंड, x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y। इसको कैसे लिखेंगे ना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ax पार्ट है, by पार्ट है, बट c नहीं है, तो कैसे लिखेंगे 1x प्लस -2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट यहाँ पे कितना है 0 है, तो हो गया हमारा ax प्लस by प्लस c। थर्ड क्वेश्चन, 2y इज इक्वल टू 3। कैसे लिखेंगे इसको, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x वाला पार्ट नहीं है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस -3 इज इक्वल टू 0। ax by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a कितना है, x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है 0, बिकॉज x पार्ट बिल्कुल नहीं था, इसलिए 0 इंटू एक्स। तो b कितना है 2, c कितना है -3, 3x माइनस 5। फोर्थ वन, 3x इज इक्वल टू -5। कैसे लिखेंगे इसको, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x वाला पार्ट है, y वेरिएबल वाला पार्ट नहीं है, कैसे लिखेंगे ना, 3 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a कितना है 3 है, b कितना है 0 है, c कितना है +5 है। फिफ्थ वन, x माइनस 5 इज इक्वल टू √3y। तो x माइनस √3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 1 इंटू एक्स प्लस माइनस √3 इंटू वाई प्लस -5 इज इक्वल टू 0, ओके। ax प्लस by प्लस c। तो यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है -√3, c कितना है -5, ओके।
क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन. राइट द स्टेटमेंट एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये गिवन स्टेटमेंट को हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म में प्रेजेंट करना है. देखो, कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन. यहां पे हमारा दो आर्टिकल है, एक बॉल पेन, दूसरा है फाउंटेन पेन. कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, दूसरा है क्या, कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन. हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट द स्टेटमेंट एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. दो वेरिएबल हमें चाहिए. लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज इक्वल टू ₹X and the cost of fountain pen is equal to ₹Y. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमें दो वेरिएबल मिल गया. अब देखेंगे ये दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है. कॉस्ट ऑफ बॉल पेन हमारा कितना है, X. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन क्या देकर रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज, कॉस्ट ऑफ बॉल पेन हमारा क्या है, X. X इज मतलब इज इक्वल टू ₹5 लेस देन, ₹5 कम है. किससे कम है, लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए फाउंटेन पेन. फाउंटेन पेन का हाफ कॉस्ट, तो फाउंटेन पेन का कॉस्ट क्या है, Y. हाफ मतलब Y/2. तो कंडीशन के हिसाब से हमें क्या मिला, X इज इक्वल टू Y/2 -5. तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, LCM 2 Y -10, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ट्वाइस X इज इक्वल टू Y -10. हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फॉर्मेट क्या है, X प्लस PY प्लस C इज इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल फॉर्मेट टू राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हमें मिला 2X इज इक्वल टू Y -10. हम कैसे लिखेंगे, 2X minus Y plus 10 is equal to 0. That means 2X plus minus Y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ये भी चलेगा. ओके, तो जो पूछा था इस स्टेटमेंट से एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर्म प्रेजेंट करो, तो ये हो गया हमारा 2X minus Y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. और एक क्वेश्चन देखो, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days and an additional charges for each day thereafter. Roshni paid ₹35 for a book kept for 7 days. Write a linear equation which satisfies this data. Okay, हमें गिवन स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में प्रेजेंट करना है. देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए. पहला वेरिएबल ये एक फिक्स्ड चार्ज, देन है एडिशनल चार्ज, मतलब ये वेरिएबल पहला 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज होता है, ये एक वेरिएबल. देन 3 दिन के बाद जो चार्ज होगा वो वेरिएबल होगा, तो एडिशनल चार्जेस. तो लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X. ये हमारा फिक्स्ड चार्ज है फॉर 3 days. फॉर 3 days, 3 days के देखो, बुक केप्ट फॉर 7 days. 3 days के बाद और कितने दिन बुक रहा, 4 दिन. अच्छा, तो वेरिएबल चार्जेस और एडिशनल चार्जेस क्या है, जो चार्ज वेरिएबल है तो फिक्स्ड है, वेरिएबल चार्ज इज इक्वल टू ₹Y. वेरिएबल मतलब ये एडिशनल, यहाँ पे एडिशनल जो चार्ज है 3 दिन के बाद एडिशनल चार्जेस ₹Y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोशनी टोटल कितना पेमेंट किया है, ₹35. रोशनी ने पेमेंट किया ₹35 फॉर हाउ मेनी डेज, 7 days. 7 days में X रुपी 3 days के लिए 7 डे, तो 7 डे के लिए रोशनी ने ₹35 पे किया. 7 से 3 तो फिक्स है, 4 एडिशनल है. डायरेक्टर फिक्स चार्ज के बाद 4 days, तो ये जो 3 days के लिए चार्ज क्या है, फिक्स हमारा X है. ये 4 days का चार्ज क्या होगा, वेरिएबल 4 into Y, X plus 4Y is equal to 30. This is the linear equation in two variable for this statement. और एक क्वेश्चन देखो, a lending library has a fixed charge for first 3 days
and an additional charges for each day thereafter. Roshni paid 35 rupees for a book kept for 7 days. Write a linear equation which satisfies this data. ये गिवन स्टेटमेंट को हमें एक लिनियर इक्वेशन फॉर्म में प्रेजेंट करना है. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days. एक बुक को 7 days के लिए लाइब्रेरी में रखा गया है. फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days. 3 days के बाद 7 days टोटल है तो 4 दिन ये बचा. 4 दिन के लिए क्या है, एडिशनल चार्जेस. टोटल नंबर ऑफ डेज 7 days. पहला 3 days के लिए चार्ज फिक्स है, बाकी 3 days के बाद एडिशनल चार्जेस है. तो लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए. पहला वेरिएबल है फिक्स्ड चार्ज. लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स. एडिशनल चार्जेस ये अनदर वेरिएबल, एडिशनल चार्जेस रुपीज वाई. टोटल रोशनी कितना पे किया, 35. टोटल पेमेंट 35. ओके, ये जो 35 रुपीज कितने दिन के लिए, 7 days के लिए. 7 days के लिए 35 रुपीज पेमेंट हो रहा है. 7 day मतलब 3 days प्लस 4 days, पेमेंट हमारा 35. 3 days के लिए चार्ज क्या है, फॉर फर्स्ट 3 days फिक्स्ड चार्ज. फिक्स्ड चार्ज हमारा कितना है, x. तो x प्लस 4 days के लिए चार्ज क्या है, पर डे चार्ज 1 रुपीज. देखो एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे. ईच डे के लिए y रुपीज है, तो 4 days के लिए कितना होगा, 4y. यहाँ पे ध्यान से कंडीशन देखो, एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे. ईच डे के लिए चार्ज क्या है, रुपीज y. तो हमारा एडिशनल चार्जेस कितना दिन है, 3 दिन के बाद 4 दिन. टोटल 7 days. बुक केप्ट फॉर 7 days. तो 3 दिन तो हो गया फिक्स्ड चार्ज और बाकी 4 दिन. 4 दिन का पर डे का चार्ज रुपीज वाई है, तो टोटल 4 days का चार्ज क्या होगा, 4y इज इक्वल टू 35. तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, x प्लस 4y माइनस 35 इज इक्वल. दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाइज दिस स्टेटमेंट. राइट. From a bus stand to Delhi, if we buy 2 tickets to Agra and 3 tickets to Mathura, the total cost is rupees 440. Express this situation in linear equation. देखो linear equation in 2 वेरिएबल के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए. 2 tickets to Agra ये एक वेरिएबल, 3 tickets to मथुरा ये दूसरा वेरिएबल. ओके, तो देखो let the cost of ticket to Agra be what, x rupees, and the cost of ticket to Mathura be y rupees. तो 2 वेरिएबल हमें मिल गया. अभी टोटल नंबर ऑफ टिकट कितना है, टू आगरा 2. टोटल नंबर ऑफ टिकट टू मथुरा कितना है, 3. तो टोटल कॉस्ट 2 टिकट टू आगरा, 3 टिकट टू मथुरा, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, 1 टिकट का कॉस्ट रुपीज एक्स. 2 टिकट का कॉस्ट कितना होगा, 2x. 1 टिकट का कॉस्ट टू मथुरा रुपीज y. 3 टिकट का कॉस्ट क्या होगा, 3y इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन में दिया है इज इक्वल टू 440 रुपीज. देयरफॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 440. This is the statement of this situation, right? Next question. The cost of a book is rupees 20 more than the twice the cost of a pen. Express this situation in linear equation. देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, cost of a book is 20 rupees more than the twice the cost of a pen. 2 वेरिएबल इधर है, एक cost of pen, दूसरा है cost of book. Let the cost of pen be rupees x and cost of book, a book, cost of a pen, cost of a book is equal to rupees y.
दो वेरिएबल हमें चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है। देखो दो वेरिएबल चाहिए, तो बुक का कॉस्ट, एक पेन का कॉस्ट x, एक बुक का कॉस्ट y। कंडीशन क्या दिया है देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ बुक इज 20 मोर देन द ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ बुक, बुक का कॉस्ट क्या है y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y, ये बुक का कॉस्ट, इज मतलब इज इक्वल टू, अच्छा, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन का कॉस्ट क्या है x, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा, मोर देन 20, देखो 20 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन का ट्वाइस से 20 ज्यादा है, तो ट्वाइस एक्स प्लस 20। तो इसको कैसे लिखेंगे, ट्वाइस एक्स, वाई राइट साइड को जाएगा माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस सिचुएशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. Express this situation in linear equation। देखो यहाँ पे हमारा दो वेरिएबल है, एक नूरी का एज, दूसरा सोनू का एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years, ओके, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनी इज y years। x नूरी का एज, y सोनू का एज, प्रेजेंट एज 5 years ago मतलब 5 years बैक, 5 years ago नूरी का एज कितना था, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू, नूरी का एज अभी कितना है x, तो डेफिनेटली x माइनस 5 होगा, 5 सब्ट्रैक्ट होगा। सोनू का एज कितना होगा, 5 years ago सोनू का एज डेफिनेटली y माइनस 5, अभी प्रेजेंट एज है y, तो 5 years बैक y माइनस 5। तो कंडीशन क्या दिया है, 5 years ago का जो कंडीशन है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी कितना है x माइनस 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू थ्राइस, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 3 इंटू y माइनस 5, तो ये होगा x माइनस 5 इंटू 3y माइनस 15, दैट इंप्लाइज x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y प्लस 15 माइनस 5 प्लस 10 is equal to 0. This is the linear equation in two variable of this situation. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Form a linear equation for this statement. Question में क्या दिया ध्यान से समझो। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Form a linear equation for this statement. देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो वेरिएबल हमारा मिल गया, सॉल्यूशन क्या होगा, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। न्यूमरेटर हमारा एक्स है, डिनोमिनेटर हमारा वाई है, दो वेरिएबल हो गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, इफ वी add 1 to numerator, देखो न्यूमरेटर x है, x के साथ 1 ऐड करो and subtract 1 from the denominator, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इज इक्वल टू ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1। हमारा जो पहले फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन है x अपन y, कंडीशन दिया है न्यूमरेटर के साथ 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर के साथ 1 सब्ट्रैक्ट करो, हमें आंसर क्या मिलेगा 1। बस क्वेश्चन में इतना दिया है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे प्लस 1, ये वाला माइनस 1 ट्रांसपोज होकर प्लस 1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 टाइम्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर,
the quotient and the remainder are 2 and 9 respectively. Form a linear equation in two variables. क्वेश्चन में क्या दिया ध्यान से समझो. 5 times the larger of the two numbers. दो नंबर है. Let the numbers are x and y. दो नंबर है. x greater than y. ये अज्यूम करना है बिकॉज लार्जर स्मॉलर के बारे में पूछा है. x इज लार्जर एंड y इज स्मॉलर. कंडीशन क्या दिया है? 5 टाइम्स ऑफ द लार्जर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर का देखो ये डिवीजन प्रोसेस है. डिवीजन प्रोसेस में हमारा ये होता है डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर. क्वेश्चन में क्या दिया है? 5 टाइम्स ऑफ लार्जर. Which one is larger? X is larger. तो इसका 5 टाइम्स मतलब 5x. When divided by smaller, y स्मॉलर है तो 5x को y से डिवाइड करो. The quotient is 2 and remainder is 9. Quotient 2, remainder 9. तो जो लॉन्ग डिवीजन का जो एल्गोरिथम है इसी हिसाब से क्या है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है. तो इस हिसाब से डिविडेंड कितना है हमारा 5x इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है y, क्वोशेंट क्या है 2 प्लस रिमाइंडर 9. तो 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 9. 5x माइनस 2y minus 9 is equal to 0. This is the standard form of linear equation in two variable for this situation, right?